آج ہم آپ کو 2019 میں ریلیز ہونے والی فلم آلیتا دی بیٹر اینجل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ فلم شروع کرنے سے پہلے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جوائن کریں، جیسا کہ ہم ہفتہ وار فلموں کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں اور آپ رومانوی، سائنس فکشن، ایکشن اور ہارر فلمیں دیکھ سکیں گے۔ اس کا انکشاف فلم کے آغاز میں کیا گیا ہے۔ عالمی جنگ کے خاتمے کو 300 سال گزر چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 300 سالوں میں ایک عالمی جنگ ہوئی تھی۔ جنگ کے نتیجے میں کرۂ ارض میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ مختلف ممالک کے افراد سے بھرا ہوا ایک خلائی جہاز دکھایا گیا ہے۔ یہ انکشاف ہوا ہے کہ خلائی جہاز کے باشندے زمین پر اپنا فضلہ پھینک رہے ہیں۔ ایک دن ایک سائنسدان کوڑے میں ایک روبوٹ دریافت ہوا۔ یہ کوئی عام روبوٹ نہیں بلکہ اپنی نوعیت کا ایک روبوٹ تھا، جو انسان اور مشین کے برابر حصے ہیں۔ یہ سائنسدان روبوٹ کو اٹھا کر اپنے گھر پہنچاتا ہے اور وہ روبوٹ کو بے عیب طریقے سے ٹھیک کرتا ہے اور اسے ایک نیا جسم اور شکل دیتا ہے۔ یہ ایک نئے جسم کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلے دن وہ روبوٹ جو ایک مادہ تھا بیدار ہوا اور وہ ایک نیا روبوٹک جسم حاصل کرنے پر بہت خوش تھی۔ خاتون روبوٹ نے پھر سائنسدان سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ سائنسدان عورت کی اصلیت سے بے خبر ہے، تو ڈاکٹر کچھ نہیں بتاتا۔ لیکن ڈاکٹر صرف اتنا بتاتا ہے، جب ہم نے تمہیں کچرے میں پایا تو تمہارا آدھا جسم خراب ہو گیا تھا، تاہم آپ کا دماغ ٹھیک تھا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے جسم کو درست کیا۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک نیا انسانی جسم منسلک کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر پھر اسے دنیا دکھاتا ہے۔ وہ خاتون روبوٹ اس شہر کو دیکھ کر پرجوش ہو جاتی ہے۔ اس میں خلائی جہاز کی ایک جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ سائنسدان سے استفسار کرتی ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ کیا یہ حقیقی دنیا ہے؟ ڈاکٹر بتاتا ہے یہ جنگ عظیم کے بعد آخری باقی ماندہ شہر تھا اور اس کا نام اسکائی سٹی ہے۔ اسکائی سٹی ایک پرامن اور خوشگوار زندگی کے ساتھ ایک انتہائی مطلوبہ مقام بن گیا ہے جس کی ہر کوئی خواہش رکھتا ہے، کیونکہ ہماری دنیا میں اعلیٰ طبقے کے لوگ رہتے ہیں جبکہ نچلے طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر اس روبوٹ کا نام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب تمہارا نام آلیتا ہے۔ آلیتا اس کا نام سن کر خوش ہو گئی۔ روبوٹ ڈاکٹر آلیتا کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہماری زمین کے تمام باشندے اسکائی سٹی کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ اسکائی سٹی میں بہت سے میدان، صنعتیں اور کارخانے ہیں۔ اس کے بعد آلیتا کی ملاقات ہیوگو نامی لڑکے سے ہوتی ہے۔ ہیوگو آلیتا کے جسم کو دیکھ کر تعریف کرتا ہے، کیونکہ اس کا جسم روبوٹک تھا جو کافی مضبوط تھا۔ آلیتا اور ہیوگو کی اچھی دوستی ہے۔ اسی رات اسی شہر میں ایک لڑکی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ دراصل اس شہر میں ایک سیریل کلر تھا جو لڑکیوں کو پکڑ کر ختم کر دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ ان کے جسم کے اعضاء فروخت کرتا تھا۔ اسی رات آلیتا نے ڈاکٹر کو دیکھا جو کہیں سے گھر واپس آ رہا تھا۔ آلیتا نے مشاہدہ کیا کہ سائنسدان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ دیکھ کر شک ہوتا ہے کہ شہر میں ہونے والے قتل کے پیچھے ڈاکٹر کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اگلے دن سائنسدان کی بیوی اس سے ملتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ان کی طلاق ہو چکی تھی۔ یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ آلیتا کے ساتھ ایڈجسٹ شدہ انسانی جسم در حقیقت اس کی بیٹی کا جسم ہے۔ اس کی بیٹی اب نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے اپنا روبوٹک جسم آلیتا کو عطیہ کر دیا۔ اس کے بعد ہیوگو نے آلیتا کو اس کھیل میں شامل ہونے کی دعوت دی، اور یہ کھیل شہر کا مشہور کھیل تھا۔ آلیتا اس گیم کو بالکل کھیلتے ہوئے دوسروں کو متوجہ کرتی ہے۔ آلیتا وہ گیم بھی جیتتی ہے۔ ہیوگو بعد میں آلیتا کو اپنے سب سے پیارے مقام پر لے جاتا ہے۔ یہ ایک عمارت کی چھت تھی جہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، اور یہاں سے اسکائی سٹی بھی قریب نظر آ رہا تھا۔ ایک سب سے بڑا پائپ بھی ہے۔ ہیوگو بتاتا ہے کہ تمام اشیاء اس پائپ کے ذریعے اسکائی سٹی سے زمین پر آتی ہے۔ میں اسکائی سٹی جانے کے لیے سخت جدوجہد کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ میں ضرور وہاں جاؤں گا۔ آلیتا پوچھتی ہے یہ اسکائی سٹی کیسا لگتا ہے؟ ہیوگو اس سے کہتا ہے در حقیقت ڈاکٹر نے تمہیں کچرے سے دریافت کیا تھا، اور وہ کچرا اسی اسکائی سٹی کا تھا۔
इसका मतलब है कि अब की इब्तिदा स्काई सिटी उसे हुई है। लेकिन एलिता को उसके बारे में थोड़ी सी याददाश्त नहीं थी और वो अपना माजी भूल चुकी थी। दरअसल वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर चला गया और एलिता इसका पीछा कर रही है। एलिता यहां समझती है कि डॉक्टर कातिल नहीं है, ताहम वो एक शिकारी जंगजू है। हंटर वॉरियर्स वो हैं जो मुजरिमों को खत्म करते हैं, फिर कातिलों की लाशों को बाद में फैक्ट्री ले जाया जाता है, उनकी जगह भारी अजर मिलता है। यहाँ वो एलिता डॉक्टर की हकीकत के बारे में जानती है। इसी वक्त सीरियल किलर वहां पहुंच जाता है। वो वही कातिल था जो लड़कियों को मार रहा था, लेकिन वो शहर में रहता था। फिर एलिता बहादुरी से इस कातिल का मुकाबला करती है। वो काफी मारती है जो इसे भागने पर मजबूर करती है, जबकि एलिता दूसरे कातिल को मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और एलिता इस कातिल का सर लेकर फैक्ट्री में चले गए, जहां उन्हें इस सर की जगह $20 का इनाम मिलता है। इसके बाद डॉक्टर अपनी कहानी एलिता को बताता है। वो शिकारी जंगजू के नाम से कैसे मशहूर हुआ और ऐसा क्या हुआ। वो बताता है, ये इस वक्त की कहानी है जब मेरी बीवी, बेटी और मैं साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में दाखिल हुआ और उनकी बेटी को अगवा कर लिया। इस वाकये के बाद वो डॉक्टर इस रोबोट पर काफी गुस्से में आ गया और डॉक्टर ने अपने बनाए हुए रोबोट को तबाह कर दिया। फिर एक आदमी मंजर पर आता है जिसका नाम विक्टर है। दरअसल विक्टर रेस गेम का सरबराह था। ये विक्टर था जो इस खेल को तरतीब देता था। डॉक्टर की बीवी को भी विक्टर के साथ देखा जा सकता है। यहां पता चलता है कि डॉक्टर की बीवी विक्टर के साथ एक चाल खेल रही है, क्योंकि विक्टर ने इससे वादा किया था कि वो इसे स्काई सिटी भेज देगा। डॉक्टर की बीवी खुद भी डॉक्टर है और विक्टर के मुलाजिम भी है। फिर वही रोबोट दिखाया जाता है जिसे एलिता ने खराब किया था। वो रोबोट विक्टर की तरफ जाता है। ये इसे बताता है कि एलिता मेरे जिस्म के बिगाड़ की वजह है। विक्टर रोबोट को बीमार तबसरा करते हुए कहता है, क्या तुम एक छोटी बच्ची से मार खाकर वापस आए हो। रोबोट ने इंकिशाफ किया कि वो छोटी लड़की नहीं बल्कि सबसे मजबूत है। यहां हम देखते हैं कि ह्यूगो इस रेस गेम को देखने के लिए एलिता को ले जाता है। वो एलिता को भी बताता है इस गेम के फाते को स्काई सिटी भेजा जाता है। ये सुनकर एलिता पुरजोश हो जाती है। फिर ह्यूगो एलिता को जहाज दुखाने के लिए ले जाता है। वो बताते हैं ये 300 साल पहले से दुश्मनों का जहाज है। वो जहाज एलिता को मुतवज्जे करता है। जब वो इस पर एक नजर डालती है तो एलिता वो पानी में कूदते हुए इस जहाज की तरफ चली जाती है। एलिता ने जहाज में एक आला तकनीकी जिस्म भी दरियाफ्त किया। एलिता डॉक्टर के पास लौटती है। वो रोबोटिक जिस्म लेकर डॉक्टर से कहती है कि इस जिस्म को मेरे साथ ठीक कर दो, इसे मेरे जिस्म से बदल दो, इस जिस्म को मेरे सर के साथ एडजस्ट कर दो। लेकिन डॉक्टर ने इस पर अमल करने से इनकार कर दिया। वो बताता है ये जिस्म ताकतवर है, इसके पास हथियार है। अगर ये जिस्म आपके साथ मिल जाएगा तो आप इतने खतरनाक हो जाएंगे, बहुत धमकी आमेज, कि तुम लोगों को मारोगे और दुनिया को तबाह करोगे। एलिता जारहाना हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। इसके बाद एलिता फैक्ट्री जाती है। वहां जाकर वो फैसला करती है कि अब ये हंटर वारियर भी है। ये ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाता है। शहर के तमाम शिकारी वहां मौजूद थे और वो सबको उकसाती है कि हमें विक्टर के रोबोट को खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये वही कातिल है जिसने पूरे शहर की जान ले ली है और ये दूसरे लोगों को भी खत्म कर रहा है। शिकारियों में से एक एलिता को हंसी मजाक बनाता है। वो कहता है, साइज में थोड़ा हो तुम किसी को कैसे मारोगे, और आप हंटर वारियर कैसे बन गए। ये सुनकर एलिता इसका सामना करते हुए इसे मारती है और वो पीछे की तरफ गिर गया है। इसे देखकर तमाम शिकारी हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान विक्टर का रोबोट वहां नमूदार होता है, जिसका हजम अब बढ़ चुका था क्योंकि डॉक्टर की बीवी ने इसे अपग्रेड किया था। वहां आकर वो रोबोट एलिता पर हमला करता है और एलिता भी बदले में इस पर हमला करती है और वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में दाखिल होता है।
फिर एलिता ई भी इसका पीछा करते हुए इस जमीन जगह की तरफ चली जाती है। इन दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई होती है। आखिर में वो रोबोट एलिता उनको खराब कर देता है और उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी वक्त ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंच गए। जब उनका रोबोट का सामना हुआ तो उन्होंने इसे मारा और उसके जिस्म को जला देते हैं। फिर वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। डॉक्टर एलिता का टूटा हुआ बाड घर ले आया। एलिता का जिस्म मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। कोई ऑप्शन न होने पर वो डॉक्टर इस जिस्म को एलिता ई से ठीक करता है जो जहाज से दरियाफ्त हुआ था। अगली सुबह जब एलिता ई बेदार होती है तो वो आरामदेह महसूस करती है क्योंकि इसे एक नया जिस्म मिला था। ये ताकतवर और लैस था और आग भी इस जिस्म से पैदा हो सकती है। इस नए जिस्म को हासिल करते हुए एलिता ई खुशी महसूस करती है। अगले दिन एलिता ई अपने रोबोटिक जिस्म को जाहिर करने के लिए ह्यूगो उसे मिलने जाती है। इसके लैस जिस्म का मुशाहिदा करते हुए ह्यूगो इसे पसंद करता है और अच्छा लगता है। वो भी मुतासिर है। यहाँ ह्यूगो ने एलिता ई पर इंकिशाफ किया, मैं जल्द ही स्काई सिटी ओ जाना चाहता हूँ, लेकिन वहां जाने के लिए हर एक को स्कोर की जरूरत होती है और ये स्कोर किसी को मारने या रेस गेम जीतने के बाद हासिल किए जा सकते हैं। ये सुनकर एलिता ई अपना रोबोट दिल ह्यूगो को देती है, इसे बाहर निकालती है और ये कहता है मेरा रोबोटिक दिल ले लो, इसे बेच दो, इस तरह आपको कुछ स्कोर मिलेंगे, फिर आप स्काई सिटी ओ जा सकते हैं। और एलिता ई का रोबोटिक दिल कोई आम नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ताकत है और वो रोबोटिक दिल इतना ही मजबूत है कि ये शहर इस रोबोटिक दिल से कई महीनों तक बिजली हासिल कर सकता है, क्योंकि इस रोबोटिक दिल में तवानाई बख्शवाई होती है। लेकिन ह्यूगो एलिता के रोबोटिक दिल को लेने से मना करता है। वो कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे अपने कब्जे में महफूज रख सकते हैं क्योंकि आपका रोबोटिक दिल बहुत जरूरी है। वो कहता है तुम्हें रेस के खेल में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है कि आप रेस जीत सकते हैं। अगर आप गेम जीत गए तो हम दोनों को स्काई सिटी ओ में चले जाएंगे। ये सुनकर एलिता फौरन रजामंद हो गई और वो खेल में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो इसे ह्यूगो के लिए अपने प्यार की वजह से अंजाम देना चाहती थी। इसके बाद विक्टर अजाय वकुआ पर पहुंचता है जो एलिता को खत्म करने के लिए शिकारियों और कातलों की खिदमत हासिल करता है। वो सबसे कहता है अगर तुम दौड़ में एलिता को मार डालो फिर मैं आपको 5 मिलियन स्कोर दूंगा, जो स्काई सिटी ओ जाने के लिए बुनियादी है। फिर वो शिकारी नजर आता है जिसे क्लब में एलिता ने मारा था और अपनी तजलील का बदला वो एलिता से लेना चाहता था। अब वो ये बदला ह्यूगो से लेने वाला था। एक आदमी को खत्म करते हुए इसने ह्यूगो पर इल्जाम लगाया। अब ह्यूगो किसी को खत्म करने के इल्जाम की जद में था, नतीजे के तौर पर वो मुजरिम बनने लगा था। दूसरी तरफ वो एलिता ई दिखाई देती है जिसने रेस में हिस्सा लिया था जो शुरू होने वाली थी। दौड़ में शामिल तमाम कातिल एलिता के मुखालिफ बन जाते हैं तो वो एलिता ई पर हमला करते हैं, लेकिन एलिता ई भी उनके बराबर थी, लिहाजा वो एक एक करके उनका मुकाबला करते हुए उन्हें मारती रहती है। फिर एलिता ई को ह्यूगो का फोन आता है। वो कहता है कि शिकारी मेरा मुखालिफ हो गया है और वो मेरी जिंदगी खत्म करना चाहता है। फिर एलिता इस दौड़ को छोड़कर ह्यूगो को बचाने जाती है। वहां पहुंचकर एलिता उस शिकारी को पुरतशद्दुद मारती है, जबकि पूरे शहर में ये इंकिशाफ हुआ है कि ह्यूगो मुजरिम बन चुका है। वो भी मतलूब था, जैसा कि पकड़ने वाले को इनाम के तौर पर $30 मिलेंगे। फिर सिटी पुलिस वहां पहुंचती है कि वो ह्यूगो को गिरफ्तार करे या खत्म करे, क्योंकि सबका इस नुक्ता नजर पर इत्तेफाक था कि ह्यूगो एक मुजरिम है, इसलिए इसे खत्म करना जरूरी है। तो सब एलिता उसे कहते हैं ह्यूगो को मौत के घाट उतार दो, लेकिन एलिता इसे नहीं मारती। लेकिन शिकारी तलवार से हमला करते हुए ह्यूगो को खत्म करता है और ह्यूगो अपनी आखिरी सांसें यहां ले रहा है। पहली नजर में ह्यूगो खत्म हो गया है। फिर डॉक्टर की बीवी वहां आती है और एलिता उनसे कहा ह्यूगो का सर काट दो।
क्योंकि हम उसके सर के साथ एक जिस्म को एडजस्ट करेंगे और हम उसे रोबोट बनाएंगे। क्योंकि डॉक्टर की बीवी अब शरीफ खातून बन चुकी थी और वो ऐसा करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा जिंदा हो सके। तो अलीता भी अब ऐसा ही कर रही है। बाद में वो ह्यूगो का सर डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद ह्यूगो के सर के साथ एक और जिस्म ठीक किया। ह्यूगो और एलिता पुरजोश हैं क्योंकि ह्यूगो का रोबोटिक जिस्म अब एलिता जैसा था। अलीता को डॉक्टर ने मतला किया कि विक्टर सबको धोखा देता है, क्योंकि वो आपको भारी रकम के साथ धोखा देने के बाद आपको स्काई सिटी भेजने का वादा करता है। यहां तक कि कोई भी इंसान रकम की रकम अदा करके स्काई सिटी नहीं जाता और कोई भी स्काई सिटी नहीं जा सकता, लेकिन वहां सिर्फ स्काई सिटी के बाशिंदे ही जा सकते हैं और वहीं आबाद भी। और रेस का फाते इस दुनिया से स्काई सिटी जा सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर अलीता को भी बताता है, मेरी बीवी और मैं स्काई सिटी में पैदा हुए थे और हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहां पहुंचे थे। इसके बाद वो यहां फंस गए। ये सुनकर अलीता को गुस्सा आता है और वो विक्टर को मारने के लिए निकल जाती है। अलीता बड़ा रास्त फैक्ट्री में जाती है और इस पर विक्टर की मशीनों से हमला होता है, लेकिन अलीता के पास अब एक ताकतवर और रोबोटिक जिस्म है। चनांचे अलीता मुसलसल एक एक करके सबको मार रही थी। तमाम मशीनों और रोबोट्स को नुकसान पहुंचाते हुए अलीता इसे खत्म करने के लिए विक्टर के पास जाती है, लेकिन विक्टर का रोबोट वहां नजर आता है। ये हमला करते हुए अलीता को जख्मी कर देता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर अलीता माजी से मुताल्लिक अपनी याददाश्त को बहाल करती है, जैसा कि इसकी याददाश्त बरकरार है जो खो चुकी थी। अलीता को याद है कि वो एक जंगजू रही थी और उसने इस आलमी जंग में भी हिस्सा लिया था जो तकरीबन 300 साल पहले मुनक़िद हुई थी। लेकिन अलीता के तमाम दोस्त और साथी इस जंग में अपने अंजाम को पहुंचे, लेकिन अलीता को भी कचरे में फेंक दिया गया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गई। यहाँ अलीता अपनी याददाश्त को ये सोचकर बहाल करती है कि ये स्काई सिटी के मालिक ने किया है और उसने अलीता के तमाम असहाब को भी खत्म कर दिया था। यहाँ अलीता याद आती है, मेरा मिशन स्काई सिटी के मालिक को मारना है। उन हकीकतों को याद करते हुए अलीता जज्बाती हो जाती है कि इसने अपने तमाम दोस्तों को खो दिया था। इसके अलावा ये जारहाना हो जाता है। फिर वो रोबोट अलीता पर हमला करता है और अलीता अपनी तलवार से हमला करते हुए इस रोबोट को टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसी वक्त वो अलीता अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए विक्टर पर भी हमला करती है और विक्टर को मौके पर ही हलाक कर दिया जाता है। इसे डॉक्टर का फोन आता है। अलीता को मालूम होता है कि ह्यूगो उन पाइपों पर चढ़कर स्काई सिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद अलीता भी इसका पीछा करते हुए आगे बढ़ जाती है। इसने इससे पूछा, तुम्हें स्काई सिटी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है। हम इस दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अलीता सुनकर ह्यूगो राजी हो गया, लेकिन स्काई सिटी का मालिक उन्हें ऊपर से देख और सुन रहा था। चनांचे वो अपने हथियार से उन पर हमला करता है। नित्जता ह्यूगो का पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी वक्त वो अलीता ने इसका हाथ थाम लिया, लेकिन अलीता गलती से ह्यूगो की गिरफ्त खो देती है, तो वो बहुत दूर से नीचे गिरता है। ह्यूगो अलीता को खोने का बहुत गम है और वो रोने लगती है। अब अलीता फैसला करती है कि स्काई सिटी में जाना इस शहर के मालिक को खत्म कर देगा, क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। ये देखा गया है कि इसने वो दौड़ भी जीत ली है और उसने अपनी तलवार को स्काई सिटी की तरफ इशारा किया है और वो स्काई सिटी के मालिक से कहती है, मैं तुम्हें मारने और बदला लेने आ रही हूं, और उस पर फिल्म खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको फिल्म के बारे में हमारी वजाहत पसंद आएगी। हमारे चैनल का हिस्सा बने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।